Hallelujah. हालेलुया। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति God हो। is going to do wonderful things when you are filled with the power of God. जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए महान काम This करते हैं। morning, God is going to do wonderful things in your life. आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम But the करेंगे, most important thing is whether you are available to receive the power God has got for you. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो सामर्थ रखी है, क्या आप उसके लिए उपलब्ध है। When the power of God comes upon your life, जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर आती है you will become a different person. तो आप एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं। Your perspective will change. आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। Every area of your life will change. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र बदल जाएगा। God will be working in your life in such a way that you'll be a different person. परमेश्वर आपके जीवन में इस तरह से काम करेंगे कि आप बिल्कुल एक अलग व्यक्ति हो Do you want जाएंगे। to see the power of God moving upon your life? क्या आप अपने जीवन पर परमेश्वर की सामर्थ को काम करते Do you want देखना to चाहते see the हैं? power of God being released upon your life? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में खोली जाए? It's very important that we need the Holy Spirit this time to see that we are endued with the power of on high. इस समय बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को देखें कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए और हम ऊपर से सामर्थ प्राप्त करें। Without the power of the Holy Spirit, we cannot do anything in our life. पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। Many people or Christians are very God-fearing, पर बहुत से जो विश्वासी हो तो परमेश्वर का भय मानने वाले but they हैं, don't have any power in their life. लेकिन उनके जीवन में कोई सामर्थ नहीं। They are powerless in their life. वो अपने जीवन में सामर्थहीन हैं That is why they are filled with frustration and they are filled with desperation in their life. और इसीलिए वो अपने जीवन में निराशा से और हताशा से भरे हुए हैं। Every Christian needs to walk in power so that they'll be able to experience great and mighty things happening in their life. हर एक विश्वासी जो है उसे तो सामर्थ से भर जाना चाहिए ताकि उसके जीवन में महान और सामर्थी काम हो सके। God wants to do something wonderful this season, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर इस समय बहुत ही अद्भुत काम करना चाहते This हैं। season is a season of blessing in your life. ये समय जो है ये तो आपके जीवन में आशीष का समय है। This morning, God is going to bring a great turnaround in your life. इस सुबह परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। Yes, God wants to fill you with power and God wants to see His demonstration of His power in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी सामर्थ से आपको भर दे और आपके जीवन में उसके सामर्थ का प्रगटीकरण देखें। What happens when the Holy Spirit comes upon your life? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन पर आता है तो क्या You होता are है? mobilized to do great and mighty works for God. आप परमेश्वर के लिए महान और सामर्थी काम करने के लिए उत्साहित किए जाते That हैं। is why we need the power of the Holy Spirit to come upon our life every day in our life. और इसीलिए जरूरी है कि हमारे ऊपर हर एक दिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए। People say one time experience is enough. लोग कहते हैं कि एक समय का अनुभव काफी But है, that is not adequate, my friend. लेकिन मेरे दोस्तों ये पर्याप्त नहीं है। Every day, every moment, you should experience the power of the Holy Spirit so that you live from victory to victory in your life. हर एक दिन आपके जीवन में आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ का अनुभव करना होगा ताकि आप अपने जीवन में विजय से विजय में जीते So जाएं। let us turn to Acts of the Apostle, तो आइए देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब chapter 2, अध्याय 2 verses 12 वचन and 13. वचन 12 और 13। So they were all amazed and perplexed, saying to one another, whatever could this mean? Others mocking said, they are full of new wine. ये कहता है वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। It is the mobilization of people for the purpose of power in our life. ये तो हमारे जीवन में सामर्थ का उद्देश्य यही है कि लोग जो है वो क्रियाशील हो जाए, काम करने वाले बने। In Joel it says, I will pour out my spirit on all flesh and your young man shall see visions and your old man shall dream dreams. योएल में ये कहता है कि मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान जो है वो तो दर्शन देखेंगे और तुम्हारे जो पुरनिये प्राचीन है वो तो स्वप्न देखेंगे। You will always be ahead of the enemy when you are filled with the power of God. जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे होते हैं तो आप हमेशा शत्रु से आप आगे ही होते हैं। When the power of God is upon your life, there is no place where the enemy will be ahead of your life. जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर होती है तो शत्रु किसी भी तरीके से आपके आगे नहीं हो सकता है।
God wants to do something wonderful in your life this morning, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहते हैं, Because God always wants you to be ahead of your enemy and ahead of everything in your life. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने शत्रु से और अपने जीवन की सारी बातों में आप सारी युक्तियों से आगे रहें, You'll always hear the voice of God. और आप हमेशा परमेश्वर की आवाज़ सुनते जाएं। You'll feel the check of heaven upon your life. आप अपने जीवन के ऊपर में स्वर्ग की ओर से मानो इस जांच को देखते You'll जाएंगे। find a release in your life. आप अपने जीवन में एक आज़ादी को पाएंगे। The Bible talks about prophecy. बाइबल भविष्यवाणी के बारे में कहती है। This is very important for every Christian life. ये तो हर एक मसीह विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। When I'm talking about the prophecy, I'm talking about the prophecy which is in the Bible. और जब मैं भविष्यवाणी के बारे में बात करता हूँ तो मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में कह रहा हूँ। When the anointing of God will come upon you, जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आएगा, you will start to prophesy like the people of old. तो आप पुराने ज़माने के लोगों के जैसे भविष्यवाणी करने लगते हैं। You can prophesy in your house. आप अपने घर में भविष्यवाणी कर सकते हैं। You can prophesy when you're eating. जब आप खाना खा रहे हैं उस समय भविष्यवाणी कर सकते हैं। You should not look lost, for all the gift of God is upon your life. और आपको ऐसे खोए हुए दिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सारे वरदान आपके जीवन पर The हैं। gift of God is for every day in your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वरदान आपके जीवन के हर एक दिन में हैं। You have access to the word of God. आपके पास परमेश्वर के वचन तक पहुंच है। When the Spirit comes in power, जो आत्मा सामर्थ के साथ आता है, when there is no Holy Spirit, there is no access to the power of God. और जब कोई पवित्र आत्मा नहीं तो परमेश्वर की सामर्थ के लिए कोई पहुंच नहीं होती है। When you are in trouble, जब आप परेशानी में होते हैं, you need something where you can get access to the knowledge of God. तो आप निश्चय परमेश्वर के ज्ञान तक आपकी पहुंच होती है। You should be among believers who will be able to prophesy and will be able to give you wise counsel. आप तो विश्वासियों के बीच में होंगे और निश्चय आप वहां पर उन्हें अच्छी बुद्धिमानी की सलाह दे पाएंगे, Because they'll say, don't worry about anything. क्योंकि वो कहेंगे किसी बात की चिंता मत कीजिए, Because they are in close relationship with God. क्योंकि वो तो परमेश्वर के साथ में नजदीकी संबंध में हैं। God wants you to have a close relationship with them. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ में बहुत ही नजदीकी संबंध में रहें। When some people talk negatively जब कोई लोग नकारात्मक रूप में बात करते हैं in any situation in your life, आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति में, then you'll have a negative spirit taking hold of you. तो फिर नकारात्मक आत्मा आपको पकड़ लेती है। You need people who can pray. आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रार्थना करें। You need people who have the fire of God in their life, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके जीवन में परमेश्वर की आग है, who are full of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Yes, when the Spirit of God comes upon your life, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर आता है, you will be transformed into a different person. तो आप बिल्कुल बदल कर एक अलग ही व्यक्ति बन जाते हैं। There should be a supernatural power upon your life. आपके जीवन पर ईश्वरीय सामर्थ होती है। Yes, you will be speaking in different languages in your life. आप अपने जीवन में अलग अलग भाषा में बोल पाएंगे। Yes, the power of God will always fill you and you will be a different person. परमेश्वर की सामर्थ हमेशा आपको भर देगी और आप एक अलग ही व्यक्ति होंगे। God can do certain things immediately and God can do something for the future also. परमेश्वर कुछ काम तो तुरंत ही करते हैं और परमेश्वर भविष्य में भी वो काम करते Yes, हैं। it all depends. God knows what is best for you. और ये तो इस बात पर आधारित है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए सबसे उत्तम क्या है। Let us not be impatient. आइए हम अधीर ना हो। Let us wait for the time of God. आइए हम परमेश्वर के समय की राह देखें। The Ecclesiastes says there is always a season for everything. और सभोपदेशक ये कहता है कि हर एक बात के लिए एक समय होता है। There's a time to rejoice, there is a time to weep, there's time to be filled with joy. और आनंद मनाने का समय होता है, रोने का समय होता है और हर्षित होने का समय होता है। Yes, God can do something immediately or God can do something later. और परमेश्वर कुछ जो है तुरंत कर सकते हैं या फिर परमेश्वर जो है वो कुछ बाद में कर We सकते should हैं। not be impatient because the vision of God depends on the situation. हमें अधीर नहीं होना है क्योंकि परमेश्वर का जो दर्शन है वो तो उस परिस्थिति पर आधारित होता है। It will unfold in your life
automatically. ये अपने आप आपके जीवन में खुलते चले जाता है। We have to tarry and wait in the presence of God. हमें राह देखनी है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। When God speaks to you in a dream, it is not vague. जब परमेश्वर स्वप्न में आपसे बातें करते हैं तो ये ऐसे धुंधला नहीं होता, बेकार नहीं है। When God speaks to you, it is very plain. जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट है। You will know without a shadow of doubt आप बिना किसी संदेह के जानेंगे that what God is speaking to you. कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। My friend, we are not in the Old Testament for somebody to interpret our dreams and our visions. हम पुराने नियम के समय में नहीं है कि कोई और व्यक्ति हमारे दर्शन और हमारे सपनों का अर्थ बताए। Because when God speaks to you, it will be very clear and you will not have any doubt in your life. क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट होता है और आपके जीवन में कोई संदेह नहीं होता। That's what it says in Romans 8:14. They that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. और इसीलिए रोमियो 8:14 में ये कहता है जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। The word prophecy means you bubble with the power, with the words of God. और भविष्यवाणी शब्द का अर्थ है कि आप परमेश्वर की ओर से शब्दों के द्वारा उमड़ते चले जाते It is हैं। the flow of the river in your life. ये तो आपके जीवन में एक नदी का बहाव है। It is a divine utterance in your life. ये तो आते हैं आपके जीवन में ईश्वरीय वहाँ उच्चारण के द्वारा। It comes in a known tongue and it is very clear. और ये तो जानी हुई भाषा में आता है और ये बहुत ही स्पष्ट होता है। When the Spirit of God comes, जब परमेश्वर का आत्मा आता है nothing can stop you from receiving what God has got for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो रखा है उसे प्राप्त करने से कोई भी आपको रोक नहीं You will सकता। always be a step ahead of your enemy आप हमेशा अपने शत्रु से एक कदम आगे ही रहेंगे because God will speak to you through your dreams and your visions. क्योंकि परमेश्वर अपने स्वप्न और दर्शन के द्वारा आपसे बातें करेंगे। You will have mental picture of what is going to happen in your life. आपके जीवन में क्या होने वाला है इसके बारे में आपके पास मानसिक चित्र होगा। You know, if you look at Psalm 25, if you look at Proverbs 3 and Amos, it says God will reveal his secret to his children. और आप देखिए भजन संहिता 25 में और नीति वचन 3 में और आमोस में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपनी संतानों पर अपने स्वप्न को या अपने दर्शन को प्रकट करते हैं। Yes, when God speaks to you, there will be a peace in your heart. और जब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे तो आपके मन में शांति होगी। There will be a joy which comes from the river which is flowing inside your life. और वो आनंद आएगा उस नदी से जो आपके जीवन के अंदर में बहती चली जाती है। Yes, you will be under an anointing and the power of God will break every yoke of Satan in your life. आप तो अभिषेक में होंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन के हर एक शैतान के बंधन को तोड़ देगी। You know, in 1 Corinthians chapter 12 it says all the gifts of the Holy Spirit is children for profit of all. और देखिए पहला कुरिन्थियों 12 कहता है कि पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं ये तो सबके लाभ के लिए है। When storms comes, जब तूफान आता है, when you are confronting certain things in your life, जब आप अपने जीवन में कुछ बातों का सामना करते when हैं, the attack of the enemy comes in your life, जब शत्रु का हमला आपके जीवन पर होता है, yes, God says that all the affliction which is coming into your life, God will send his angels to intervene in your life. जब आपके जीवन में जो कुछ भी क्लेश आता है तो परमेश्वर निश्चय अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं कि आपके जीवन में हस्तक्षेप करें। When the Spirit of God comes with power, then what happens? There will always be a supernatural solution to everything you see. जब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के साथ में आता है तो आप जो कुछ भी देखते हो उसके लिए हमेशा ईश्वरीय हल होता है। Every problems you face, that you might face in your life, God will bring about a solution in your life. हर एक समस्या जिसका आप अपने जीवन में सामना करते हैं उसके लिए परमेश्वर हल लेकर आते हैं। God doesn't take off because you have a problem in your life. आपके जीवन में समस्या है इसलिए परमेश्वर ऐसे आपको नहीं छोड़ देते, आपको दूर नहीं God says, करते। I will not leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। People may leave you if things are not working properly in your life. अगर आपके जीवन में सब कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो शायद लोग आपको छोड़ के चले जाएं। But God will not leave you, my लेकिन friend. परमेश्वर मेरे दोस्तों आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। The God we serve is a mighty God. जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो तो सामर्थी परमेश्वर हैं। Hallelujah. Everything you need, God gives to you. और जो कुछ भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको देते हैं। Yes, everything you need
is in the Holy Spirit. जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब पवित्र आत्मा में है। All you need is to go to the presence of God. आपको जो भी चाहिए उसके लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। When you're under the power of God, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में होते हैं, you'll have all the advice you need in your life. आपके जीवन में आपको जो भी सलाह चाहिए वो वहाँ पर होती है। Every problem will be solved because the anointing is upon your life. क्योंकि अभिषेक आपके जीवन पर, इसलिए हर एक समस्या हल हो जाएगी। The world does not know when God calls you to do something wonderful in your life. जब परमेश्वर आपको आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने के लिए बुलाते हैं तो संसार इसे नहीं जानता है। Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मांगिए, He will give you advice for your life वो आपके जीवन के लिए आपको सलाह देगा। and for your family, for every situation you face in your life. आपके परिवार के लिए, आपके जीवन में हर एक परिस्थिति जिनका आप सामना करते हैं उसके लिए। Don't ask people for advice लोगों से आप सलाह मत मांगिए, because in 1 John it says you have an anointing which will teach you everything in your life. क्योंकि पहला यूहन्ना में ये कहता है कि आपके ऊपर अभिषेक है जो आपके जीवन की हर एक बातों के लिए आपको सिखाते जाएगा। If you turn to people, eventually everything will be wrong in your life. अगर आप लोगों की ओर फिरेंगे तो निश्चय आगे जाकर सब कुछ आपके जीवन में गलत हो जाएगा। Go to the Holy Spirit for your advice. अपनी सलाह के लिए आप पवित्र आत्मा के पास में जाइए। He will equip you for all the situations in your life. वो आपके जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए आपको तैयार करेगा। He can well advise you. वो आपको अच्छी सलाह देता है। It is under the anointing and direction of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा के अभिषेक में और उसके मार्गदर्शन में है। You know what you have to do. तभी तो आप जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। It is under the anointing of the Holy Spirit everything becomes clear in your life. ये तो पवित्र आत्मा के अभिषेक में ही आपके जीवन में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। It is under the influence of the Holy Spirit ये तो पवित्र आत्मा के प्रभाव में है that you can get everything that you need for your every situation in your life. तो आपके जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको मिल जाता है। So that is why it is important this morning that everybody should come under the influence of the Holy Spirit. और इसीलिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के प्रभाव में आ जाए। You have to rely on the word which comes from heaven. आपको स्वर्ग से आने वाले उस वचन पर आधारित रहना होगा। You must know what the Lord wants you to do in every situation in your life. आपके जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु क्या चाहते हैं कि आप करते जाएं, इसे आपको जानना होगा। We don't need good ideas. हमें अच्छे आइडियाज की जरूरत नहीं, We need God ideas. हमें परमेश्वर के आइडिया की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, we don't need our own ideas. We need the ideas of God. हमें अपने विचारों की जरूरत नहीं है, आइडिया की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर के आइडिया की जरूरत है। You should know how to walk with the Holy Spirit every day in your life. आपको जानना होगा कि जीवन में प्रतिदिन कैसे पवित्र आत्मा के साथ में चलते हैं। You should not walk with your natural eyes. आपको अपनी स्वाभाविक आंखों के साथ में नहीं चलना है। You should walk with supernatural eyes. आपको अलौकिक या ईश्वरीय आंखों के साथ में चलना When है। the anointing of God is upon you, जब आप पर परमेश्वर का अभिषेक होता है you'll have the supernatural power of God being released upon your life. तो आपके जीवन पर परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ खोली जाएगी। You will hear what others cannot hear. और जो दूसरे नहीं सुन सकते हैं वो आप सुनेंगे। You will see what others cannot see. जो दूसरे नहीं देख सकते हैं वो आप देख पाएंगे। You will know all this by the Holy Spirit who is present with you. और ये सब कुछ आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे जो आपके अंदर में उपस्थित है। Some people may call you crazy. कुछ लोग शायद आपको पागल कहें, It doesn't matter. जो कोई फर्क नहीं पड़ता, Because your relationship with the Father, with the Holy Spirit and the Son is so strong that nobody can shake you. क्योंकि पिता के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में और उसके पुत्र के साथ का संबंध आपका इतना मजबूत है कि कोई आपको हिला नहीं सकता। That is why they call the people in the first century Christianity as people who are crazy. और इसीलिए पहली सदी की मसीहत के लोगों को उन लोगों ने तो पागल लोग कहा। You know, in Acts of the Apostle chapter 2 verses 14, Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, men in Judah and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words, for they are not drunk as you suppose, since it's only the third hour of the day, but this is what was spoken by the prophet Joel.
वचन 14 से आगे यहाँ पर कहता है, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। Yes, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see dreams, your old men shall dream dreams. अगला वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। You see, this is what is being spoken by prophet Joel even before Jesus was born. ये तो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो भी यीशु के जन्म के बहुत पहले। Nowhere in the Bible it says we have to be very careful about everything. और बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमें हर एक बात के बारे में बहुत ही सावधान रहना होगा। Nowhere it says we have to have the spirit with moderation. और हमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि हमारे अंदर ऐसी आत्मा हो कि हम बस सुधार लेते चले जाएं। God says, I'll give you the Holy Spirit without measure. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें असीम रूप में पवित्र आत्मा We should दूंगा। allow the Holy Spirit to move freely in our life. हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बड़ी आजादी से काम करने देना Some चाहिए। people are in so much of bondage. कुछ लोग तो इतने बंधन में होते हैं, They're so taken up by their tradition and all kinds of ritual in their life. वो तो अपने जीवन में इतनी परंपरा और इतनी सारी विधियों में फंस जाते हैं, That is why they are so bound with bondages in their life. और इसीलिए वो अपने जीवन में बहुत से बंधनों से बंधे होते हैं। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? When you know the truth will set you free. जब आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। Received freely, give it freely. आपने मुफ्त में पाया, इसे मुफ्त में दें। Yes, God wants you to move from your natural realm to a supernatural realm. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने स्वाभाविक क्षेत्र से ईश्वरीय क्षेत्र में आ जाएं। When the Spirit comes with power, जब आत्मा अपनी सामर्थ के साथ आता there है, will be great victory in your life, my friend. तो मेरे दोस्तों, आपके जीवन में महान विजय होती है। We are not looking for natural interpretation, हम स्वाभाविक अर्थ को नहीं देख रहे हैं, but we are looking for a supernatural interpretation which comes from the Spirit of God. लेकिन हम उस अलौकिक अर्थ को देख रहे हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा से आता है। Because the natural mind cannot understand the spiritual things which are given by the Holy Spirit. क्योंकि स्वाभाविक मन उन आत्मिक बातों को नहीं समझता है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। Don't go to people who do not have a relationship with the Holy Spirit. आप उन लोगों के पास में मत जाइए जिनका पवित्र आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। This morning, God wants to bring a transformation in your life. आज सुबह परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते God हैं। wants to bring about a change in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेकर आना How चाहते can हैं। you have that change in your life? आप अपने जीवन में ये बदलाव कैसे पा सकते हैं? Be receptive to the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने वाले When बने। you are receptive to the Spirit of God, जब आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने वाले होते हैं, things will change in your life. तो आपके जीवन में सब कुछ बदल There will be a जाएगा। big transformation in your life. आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लेकर The आएंगे। power of God will move upon your life. परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम The करेगी। Spirit of God will fall upon your life. परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर उतर You will आएगी। not be the same person. आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं You रहेंगे, will be a different person. आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो You will जाएंगे। be filled with the power of God in your life. आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगे। In whichever direction you change, आप जिस किसी दिशा में जाएं, in whatever area you're in, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, God will direct your path. परमेश्वर आपके मार्गों का मार्गदर्शन करेंगे। That's what it says in Psalms. The steps of a good man are ordered by the Lord. और इसलिए तो भजन संहिता कहता है कि भले व्यक्ति के जो कदम है वो तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, Because the anointing of God is upon their life. क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन पर होता This है। morning, do you want that anointing upon your life? क्या आज आप अपने जीवन पर यह अभिषेक पाना चाहते Do हैं? you want that anointing to lead you in your life? क्या आप चाहते हैं कि यह अभिषेक आपके जीवन में आपकी अगुवाई करें?
then receive the Holy Spirit this morning. तो आज सुबह इस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर You लीजिए, will be a different person. तो आप एक अलग व्यक्ति हो There जाएंगे। will be a great transformation taking part in your life. आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। God wants to do something wonderful this morning, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज कुछ अद्भुत करना चाहते When the हैं। Spirit of God comes upon you, जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आता you will है, be a different person. तो आप एक अलग व्यक्ति हो Your जाएंगे। mindset will change. आपकी मानसिकता बदल Your जाएगी, focus will change. आपका गौर बदल Your जाएगा, direction will change. आपकी दिशा बदल जाएगी, Yeah, you'll from an ordinary person, you'll become an extraordinary person. और एक साधारण व्यक्ति से आप एक असाधारण व्यक्ति बन God जाएंगे। wants to do something wonderful in your life, my friend. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। This morning, will you accept the Spirit of God in your life? आज क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करेंगे? The Spirit of God is knocking at your heart's door. परमेश्वर का आत्मा आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता If you है। open your heart to Him, अगर आप अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे, He will come to you. वो आपके पास आएगा, He'll speak to you. वो आपसे बातें He will करेगा, dine with you. वो आपके साथ He'll भोजन have a करेगा, relationship with वो you. आपके साथ में संबंध रखेगा। He is more interested in having a relationship with you than you can understand. आप जो कुछ भी समझ सकते हैं उससे भी ज्यादा वो आपके साथ में संबंध रखने में दिलचस्पी लेता है। All you have to do is to surrender your life and hand over your life to Him. आपको बस इतना ही करना है कि अपना जीवन आप उसे समर्पित कर दें And tell God, Lord, take responsibility of my life. और कहें परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन की जिम्मेदारी लीजिए, You direct my life. आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। If this word has blessed you this morning, अगर इस वचन ने आज आपको आशीष दी है, we have the number on your screen. तो आपके स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, You can call us, and our prayer warriors are ready to receive your prayer. आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे प्रार्थना योद्धा हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। Or you can WhatsApp us in this number. या फिर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। God can do great and mighty things in your life. परमेश्वर आपके जीवन में महान और सामर्थी This काम morning, करेंगे। God wants to anoint you with the Holy Spirit. आज परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक देना Don't चाहते हैं। reject Him. इसका इनकार मत कीजिए, Don't grieve Him. उसे शोकित मत कीजिए, Don't quench Him. उसे मत बुझाइए, But receive Him this morning. लेकिन आज उसे आप ले लीजिए। Great blessing will flow in your life. आपके जीवन में महान आशीष बहती Let जाएगी। us pray. आइए प्रार्थना करते Heavenly हैं। Father, we thank you and we praise you for this wonderful morning. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज सुबह अद्भुत सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। We know, Lord, that with the power of the Holy Spirit, we can do great exploits for you. हम जानते हैं प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम आपके लिए महान काम कर सकते We हैं। want to be a mighty witness for you, Lord. हम आपके लिए महान गवाह होना चाहते हैं, Because when the Spirit comes, it will be filled with power. क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो ये हमें सामर्थ से भर देता We है। want that power to work in our life. हम चाहते हैं कि ये सामर्थ हमारे जीवन में काम करें। Speak to us this morning. आज हमसे बातें कीजिए। I want to receive and I am hunger for that great blessing to flood in my life. और मैं चाहता हूं कि वही आपकी जो महान आशीष है वो हमारे जीवन में बाढ़ की जैसी बहती जाए। Thank you for speaking to me this morning. आज हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता May हूँ। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे Let the name of God be glorified. और परमेश्वर का नाम ही महिमा पाए। Amen. आमीन। Journey from earth to glory. All I ask to be like Him, to be like Jesus, to be like Jesus. All I ask to be